नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का तखमीना बजट 50% भी खर्च नहीं हुआ तो 90% काम मुकम्मल होने का दावा कैसे दुरुस्त हो सकता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोहेड़ा इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड फ्रूट मार्केट का 6 जून को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रखेंगे संग बुनियाद। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव का ऐलान। रियासती हुकूमत रिवायती ITC इदारों को जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स ATCs में कर रही है तब्दील। वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी का मल्लेपल्ली में बयान। KTR अपने अहले खाना के हमरा पहुँच गए मलेशिया, जहाँ तेलंगाना के NRIs और पार्टी कारकुनों ने इनका किया इस्तकबाल। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात आज से शुरू, जो 12 जून तक रहेंगे जारी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुमेरात की शब ऑपरेशन कॉच के तहत खुसूसी गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। 12,000 से ज़ायद गाड़ियों की गई जांच। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने सवाल किया कि जब मनसूबे के तखमीने का बजट 50% भी खर्च नहीं हुआ तो 90% काम मुकम्मल होने का दावा कैसे दुरुस्त हो सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में के चंद्रशेखर राव ने आपाशी मनसूबों पर 84,503 करोड़ रुपये का खर्च छोड़ा, जबकि मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 30 माह में 52,120 करोड़ रुपये का खर्च अदा किया है। उन्होंने बताया कि इसी मुद्दत में ठेकेदारों को 22,000 करोड़ रुपये अदा किए गए, जिनमें से 8,000 करोड़ रुपये सिर्फ पालामुरू मनसूबों पर खर्च हुए हैं। ప్రచారం అబద్ధాలే 90% పాలమూరు జిల్లా ప్రాజెక్టులు పూర్తినాయని నిన్నమన్న వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ చెప్పారా? మీరందరూ రిపోర్ట్ చేశారు కదా. 90% పనులు పూర్తయితే వాళ్ళ అంచనాల ప్రకారమే, వాళ్ళు ఇచ్చిన జీవో ప్రకారమే 55,000 కోట్ల రూపాయల పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలు కావాలనా? వాళ్ళు అదే చెప్తారు కదా. వాళ్ళ హయాంలో ఖర్చు పెట్టిందే 27,000 కోట్లు. వాళ్ళు ఆ రోజు చేసిన అంచనా 55,000 కోట్లు. ఈ రోజు అది ఎంత అవుతుందో మళ్ళా కొత్త రేట్లు పెరిగినా ఇంకా అంచనా చేయలే. 50% కూడా నిధులు ఖర్చు పెట్టకుండా 90% పనులు ఎట్లా పూర్తయితాయి? అంటే అంచనాలన్నా అబద్ధం ఉండాలి, పని చేయకుండానన్నా అబద్ధాలు చెప్పాలి. రెండింటికి పొంతన ఉండాలి కదా. 55,000 కోట్ల రూపాయలతోని పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలు పూర్తి అవుతుంది అన్నప్పుడు 27,000 కోట్ల రూపాయలు అంటే సరిగ్గా 50%, లెస్ దాన్ 50%, 48-47%, 47-48% నిధులు ఖర్చు పెడితే 90% పనులు ఎట్లా పూర్తవుతాయి? మీడియా మిత్రులుగా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. నాకు ఆ సైన్స్, ఆ మ్యాథ్స్ నాకు అర్థమైతలేదు. 80,000 పుస్తకాలు నేను చదవలేదు, నాకు ఆ లాజిక్కే దొరకడం లేదు. ఈ 27,000 పంపులకు లిఫ్టులకే మాక్సిమం పోయినాయి. పంపులు లిఫ్టులు మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటే మొత్తం కరెంట్ వైర్లు, మీటర్లు, సామాన్లు కొనుక్కుంటే, గోడలు కట్టకుంటే, స్లాబ్ వేయకుంటే, కరెంట్ వైర్లు కొనుక్కొని ఇంట్లో లైట్లు వెలుగుతాయా? ఎందుకు ఎలక్ట్రోమెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్ కొన్నాడంటే 20%, 30%, 40% కమిషన్లు కొట్టడానికి అడగోలుగా రేట్లు పెంచి ఆ పైసలు ఇచ్చాడు. సివిల్ వర్కులకు ఇయ్యలే, భూసేకరణకి ఇయ్యలే. ఏ ప్రాజెక్ట్ కట్టాలని మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే కూడా ఫస్ట్ ప్లాట్ కొనుక్కుంటారు. అవునా? ప్లాట్ కొనుక్కున్న తర్వాత దానికి డ్రాయింగ్స్ చేపిస్తారు. డ్రాయింగ్స్ తర్వాత సివిల్ వర్కులు చేస్తారు. సివిల్ వర్కుల తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ వర్కులు చేస్తారు. ఈ రోజు ఆయన ఎట్లా పడితే అట్లా చేసి, ఏది పడితే అది మాట్లాడి ఉన్నదంతా ఊడ్చుకపోయి, దోసుకపోయి ఈరోజు మమ్మల్ని ఏదో దోషులుగా నిలబెడుతున్నామని భ్రమలలో ఉన్నారు. ఎవరంత అమాయకులు లేరు. ఏ ఊరికి ఆ ఊరికి తెలిసి ఆ ఊరిలో పని ఏమైతే. ఇప్పుడు కొల్లాపూర్ పోయినాం, చిన్న పిల్లగాన్ని అడిగినా చెప్తుండే ఏం జరిగిందో. వనపర్తి ఏరియాకు పోయినాం, నాగర్ కర్నూలు ఏరియాకు వచ్చినాం, ఇప్పుడు దేవరకద్ర ప్రాంతానికి వచ్చినాం, రేపు జడ్చర్లకు పోతాం. లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కదా ఈయన ఏం చేసిండు, ఏం చేయలేదు, నిధులు ఇచ్చిండా, ఇయ్యలేదా. అందుకే ఈరోజు वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा कि कोहेड़ा इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड फ्रूट मार्केट का संग बुनियाद 6 जून को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों रखा जाएगा। 239 एकड़ अराजी पर तकरीबन 3,367 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली ये मार्केट आलमी मियार की सहूलतों से आरास्ता होगी और मुल्क के लिए एक मिसाली मनसूबा साबित होगी।
वज़ीर ने कहा कि इस मंसूबे से तकरीबन 1.65 लाख फल काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचेगा, जबकि ज़ख़ीरा और लॉजिस्टिक्स जैसी जदीद सहूलियात एक ही मुकाम पर दस्तियाब होगी। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे से 14,000 अफराद को बराह रास्त और 20,000 अफराद को बिलवास्ता रोज़गार के मौके हासिल होंगे, जिससे किसानों की आमदनी और रियासती मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। गौरवनीयुలు చరకాల మిత్రులు స్థానిక శాసనసభ్యులు రంగన్న గారికి, గౌరవనీయులు పార్లమెంట్ సభ్యులు చంద్రకుమార్ రెడ్డి గారికి, ముఖ్య కార్యదర్శి సురేంద్ర మోహన్ గారికి, కమిషనర్ గోపి గారికి, అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారికి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారి వారి బృందానికి, డైరెక్టర్లందరికీ, పోలీస్ అధికారులు, అదేవిధంగా జిల్లా యంత్రాంగానికి, ఇచ్చేసినటువంటి ప్రాంత పెద్దలందరికీ, మిత్రులందరికీ, పత్రికా విలేకరులకి ధన్యవాదాలు. అందరూ చెప్పినట్లుగానే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొదటి రోజుల్లోనే ఇందాక రంగారెడ్డి గారు చెప్పినట్లుగా గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి ఈ మార్కెట్ యొక్క చరిత్ర చూసినటువంటి వ్యక్తిగా, ఆనాడు ఆ ప్రభుత్వం యొక్క వ్యవహార శైలిని పరిశీలించినటువంటి వ్యక్తిగా, ఆనాడు ఈ ప్రాంతానికి పిసిసి అధ్యక్షుడిగా, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా రంగారెడ్డి గారు ద్వారా ఈ ప్రాంత మార్కెట్ని పరిశీలించి భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఒక అంతర్జాతీయ మార్కెట్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి ఆ రోజునే ఆయన సంకల్పించి, ఆ సంకల్పానికి తగ్గట్టుగా ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వ కాలంలో ఇచ్చినటువంటి భూమికి ఇంకా లాజిస్టిక్స్కి సంబంధించి కానీ, ఇప్పుడున్నటువంటి రోడ్ నెట్వర్క్కి సంబంధించి భవిష్యత్తులో వచ్చే త్రిగుణాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ అంతర్జాతీయ మార్కెట్కి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా వ్యాపారస్తుల్ని, ఎక్స్పోర్టర్స్ని, ఇంపోర్టర్స్ని ఆకర్షించేటటువంటి స్థాయిలో ఆనాడు తలసినటువంటి మార్కెట్ని పెద్ద ఎత్తున నిర్మాణం చేయాలని సంకల్పించి కొంత ఆలస్యమైన ఆయన అనుకున్నటువంటి రీతిలో, అనుకున్నటువంటి స్థలంలో तेलंगाना के वज़ीर डॉक्टर जी विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि रियासती हुकूमत रिवायती आईटीसी इदारों को जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स एटीसीज़ में तब्दील कर रही है, ताकि नौजवानों को आलमी सतह के रोज़गार के मौके के लिए तैयार किया जा सके। हैदराबाद के मल्लेपल्ली एटीसी के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ये मराकज़ नौजवानों के लिए हुनरमंदी, मुलाजिमत और बैनुल-अक़वामी करियर के दरवाज़े खोल रहे हैं। वज़ीर ने बताया कि हुकूमत ने टाटा टेक्नोलॉजीज़ के इश्तराक से तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के ज़रिए जदीद तरबियती सहूलियात कायम की है। तलबा को वजीफ़ा भी फराहम किया जा रहा है ताकि माली मुश्किलात में इनकी तालीम रुकावट ना बने। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने मुस्तक़बिल को रोशन बनाएँ। बीआरएस के वर्किंग सदर व साबिक़ वज़ीर KTR अपने अहल खाना के साथ मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर पहुँच गए, जहाँ तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले NRIs और पार्टी कारकुनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। KTR 6 जून को कोलालमपुर में मुनक़िद होने वाली तेलंगाना यौम तासीस तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इनकी आमद से मलेशिया में मुक़ीम तेलंगाना बरादरी में खुशी व जोश व खरोश की लहर दौड़ गई। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात आज से शुरू हो गए हैं, जो 12 जून तक जारी रहेंगे। इम्तहानात के इनेकाद के लिए रियासत भर में 93 इम्तहानी मराकज़ क़ायम किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक इम्तहानात सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक होंगे। तलबा को हिदायत दी गई है कि वो इम्तहान शुरू होने से कम आधा घंटा पहले इम्तहानी मरकज़ पहुँच जाएँ। एज फास्ट फूड सेफ्टी हुकाम और हबीबनगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ख़दीम मल्लेपल्ली में वाक़ एक चॉकलेट तैयार करने वाली यूनिट पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 200 किलो से ज़ायद चॉकलेट्स मुद्दत ख़त्म हो चुके खुशबू वाले केमिकल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी ज़ब्त की गई। हुकाम के मुताबिक मसनूआत को लाजमी तफसीलात जैसे तारीख़ तैयारी, बैच नंबर और तारीख़ मियाद के बग़ैर दोबारा पैक करके फ़रोख्त किया जा रहा था।
पुलिस ने कुंडा कार्तिक नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। Okay, sorry, we are not disturbing you. Don't mind. మొత్తం ల్యాండ్ వచ్చేసి ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి 105 గజాలు 105 గజాలు 105 150 ఉంటుంది డిమాన్స్ట్రేషన్ నాకు అగ్రిమెంట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత शहर में अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुमेरात की शब ऑपरेशन कॉच के तहत खुसूसी गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स, मादापुर, बोराबंडा, सनत नगर, पुराना शहर और अमीरपेट समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में पुलिस हुकाम ने खुद मौके पर पहुँच कर गाड़ियों की तलाशी ली। इस खुसूसी मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 12,098 गाड़ियों की जाँच की गई। पुलिस ने 1,406 गलत नंबर प्लेट वाली, 1,132 बग़ैर नंबर प्लेट वाली और 69 जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की निशानदही की। क़वायद की ख़िलाफ़ वर्जी पर 2,149 गाड़ियों को ज़ब्त किया गया। पुलिस ने ख़बरदार किया कि जाली या तब्दील शुदा नंबर प्लेटों के इस्तेमाल को सिर्फ ट्रैफिक खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि संगीन जुर्म तस्वुर किया जाएगा और मुलविज़ अफराद के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। चालान डालो, लॉ में है आपको सीज करना गाड़ी सीज कर सकते। स्पॉट पे नोटिस भेजना है आपको, घर पे नोटिस भेज के सीज करना है आपको गाड़ी। आज ले लो डिटेल, मेरा आरसी ले लो, आप आरसी ले लो आप। आज हमारे हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार सर के इंस्ट्रक्शंस पर आज पूरा भी सिटी में व्हीकल चेकिंग ऑर्गेनाइज करे। तो राजेंद्र नगर जोन में 10 पुलिस स्टेशन में 10 प्लेसेस में चेकिंग हो रहा है। तो जो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जिसको नंबर प्लेट नहीं है और जो फेक नंबर लगा के चला रहे हैं वो व्हीकल्स को हम चेक करके सभी व्हीकल्स को भी हम एज पर मोटर व्हीकल एक्ट और जो लॉ है उसके मुताबिक इसको हम डिटेन करके इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर हैदरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पप्पलागुड़ा खाजागुड़ा इलाके में तकरीबन 200 एकड़ सरकारी ज़मीन को महफूज बना लिया। इस ज़मीन की मालियत तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई से कई साल कदीम नायाब चट्टानी साख्तों और कुदरती विरसे के मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। ये इक़दाम हाई कोर्ट की हिदायत के तहत किया गया। माहिरीन माहौलियात कई बरसों से इस तारीख़ी चट्टानी इलाके को तजावीज़ात से बचाने की कोशिश कर रहे थे। महफूज किया गया इलाका बहाल शुदा भगीरथ शेरों के करीब वाक़ है, जिससे यहाँ माहौलियाती सयाहत के फ़रोग़ के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। तेलंगाना ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन DCA ने 4 जून 2026 को हनमकुंडा के येनोगुलागड्डा में एक जाली डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारकर 41 अक़साम की अद्वियात ज़ब्त कर ली। ज़ब्तशुदा अद्वियात में 35 इंस्टीट्यूशनल सप्लाई दवाएँ भी शामिल हैं, जिन्हें गैरकानूनी तौर पर फ़रोख्त के लिए ज़ख़ीरा किया गया था। हुकाम के मुताबिक ज़ब्तशुदा ज़ख़ीरे में एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात शामिल है। इस मामले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है और क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद के तौर पर यादయ్య ने अपना ओहदा संभाल लिया। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत की कई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स यानी DEOs के तबादलों के अहकामात जारी किए गए, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है। नए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर यादయ్య ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर सेक्शन इंचार्ज मोहम्मद मुजाहिद अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के फैमिली कोर्ट में एडवोकेट निशात रज़ा पर हमले के मामले में मीर चौक पुलिस ने मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2026 की दफ़ा के तहत FIR दर्ज कर ली है। इस मौके पर एडवोकेट मोमिन रोशन ज़मीर, साईनाथ, रोहित पाल सिंह और सचिन समेत वकला ने
पुलिस हुकाम से मुलाकात करके नए कानून के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया। वकला ने एडवोकेट निशात रज़ा पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और वकला के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। हम लोग यहाँ पे कल्पतरू फैमिली कोर्ट में इसलिए जमा हुए हैं कि आज सुबह में कोर्ट का जब कालवर्क चल रहा था और कोर्ट का काम कालवर्क ख़त्म होने के बाद ये केस में हमारे कोलीग एडवोकेट जो निशात रज़ा मैडम है उन्होंने अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में रिप्रेजेंट किया। काम मुकम्मल हुआ, डेट मिल गई। उसके बाद ये कोर्ट से बाहर निकलते ही प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट के सामने इनकी जो क्लाइंट है उनकी जो वाइफ है यानी कि अदर साइड पार्टी उन्होंने निशात रज़ा मैडम के साथ अचानक से बदतमीज़ी और बदकलामी करते हुए इनको अपीज़ किया गया। उसके बाद ये खामोशी से नीचे उतर कर आई। उसके बाद बार एसोसिएशन के सामने अचानक निशात रज़ा मैडम के ऊपर जो क्लाइंट की वाइफ है उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, इनको शदीद तरह से ज़ख्मी किया, जिसकी वजह से इनको ब्लीडिंग इंजरीज हुई। जिसकी इतला मिलते कि हम सभी लोग मिलकर मीरचौक पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दिए हैं। कंप्लेंट देने के बाद पुलिस ने MLC के लिए रेफ़र किया उस्मानिया दवाखाने को। MLC मुकम्मल होने के बाद फिर हम लोग पूरे मिलकर बैठ कर वहाँ पर बात किए। जो भी है पूरा बताया गया कि गैर ज़रूरी इनकी किसी भी तरह की गलती ना रहने के बावजूद भी इनका काम यानी कि एक एडवोकेट अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में किस तरह से अप्रोच होकर उसकी खिदमत अंजाम देना है, उसका काम करना है, प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी गैर ज़रूरी इनकी किसी भी तरह की गलती ना रहने के बावजूद भी इनके ऊपर गैर ज़रूरी अटैक किया गया। हम लोग इस अटैक की खासकर शदीद तरीके से पुरजोश तरीके से मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं हम पूरे लोग। और वहाँ पर हम लोगों ने कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट देने के बाद आप सभी को मालूम है कल ही तेलंगाना हुकूमत ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2026 को अमल आवारी के लिए कम इनटू फोर्स के लिए जो है ना GO 41 नंबर जारी की थी। उसी के तहत हम लोग इंस्पेक्टर से और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2026 के तहत सेक्शन 4 क्लास 1 के तहत FIR रजिस्टर कराए हैं और FIR नंबर 149/2026 है। हम लोग आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि गैर ज़रूरी एडवोकेट्स के ऊपर अटैक करना ये सख्त से सख्त जो है ना गलत बात है। हम इसकी शदीद तरीके से मजम्मत करते हैं। मैं सभी क्लाइंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट जो है ना क्लाइंट और एडवोकेट का ताल्लुक ये रहता है कि एडवोकेट सिर्फ क्लाइंट का जो काम है वो काम करता है। क्लाइंट की पर्सनल ज़िंदगी से एडवोकेट का किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रहता है। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट जो है ना आपका काम आप करिए, एडवोकेट का काम एडवोकेट करते हैं। आप गैर ज़रूरी एडवोकेट के ऊपर अटैक कर आप जो है ना गैर ज़रूरी केसों में मुलव्वस मत होइए। अब जो तेलंगाना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है वो जो है ना उसमें सख्त क़वानीन के साथ आया है। कोई भी एडवोकेट को अगर अटैक करता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। मैं उसके बाद भी यहाँ की जो लोकल पुलिस है उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और कर जो भी इस मामले में मुलव्वस है, जो लेडी ने इनके ऊपर अटैक किया है, उनके साथ जो है ना जो भी सेक्शंस उनको लगते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनको कर चार्जशीट फाइल कर उनको सख्त से सख्त सज़ा देने का हम मुतालबा करते हैं। मैं फिर से एक बार यहाँ पे जितने भी एडवोकेट्स ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं और पुलिस स्टेशन में भी जो भी लोग आकर हमें सपोर्ट किए थे, बहुत लोग आए थे लेकिन टाइम ख़त्म होने की वजह से पूरे लोग चले गए हैं। मैं सबका आज जो भी सपोर्ट किए हैं, जो फ़ोन के ज़रिए से भी सपोर्ट किए हैं, मैं इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर मैं इस मामले में हमारे बार काउंसिल के मेंबर पोन्नम अशोक गौड़ साहब और लीगल सेल के चेयरमैन पोन्नम अशोक गौड़ साहब से भी बात किया। उन्होंने भी पुलिस को फ़ोन कर बात किया है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने भी मुतालबा किया और उन्होंने भी इस मामले की सख्त से सख्त मरम्मत की है। मैं सभी का एक बार शुक्रिया अदा करते हुए इस जो हमले की सख्त से सख्त मरम्मत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आखिर में सुर्खियां और एक बार। पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का तखमीना बजट 50% भी खर्च नहीं हुआ तो 90% काम मुकम्मल होने का दावा कैसे दुरुस्त हो सकता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोहेड़ा इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड फ्रूट मार्केट का 6 जून को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रखेंगे संगे बुनियाद। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव का ऐलान। रियासती हुकूमत रिवायती ITC इदारों को जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स ATCs में कर रही है तब्दील। वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी का मल्लेपल्ली में बयान। KTR अपने अहले खाना के हमरा पहुँच गए मलेशिया।
जहां तेलंगाना के NRIs और पार्टी कारकुनों ने इनका किया इस्तकबाल। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात आज से शुरू, जो 12 जून तक रहेंगे जारी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुमेरात की शब ऑपरेशन कॉच के तहत खुसूसी गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। 12,000 से ज़्यादा गाड़ियों की गई जांच। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।